esteemed resource person, Professor and Head Dr.Shaheen Kousar were the coordinator of this program, Dr. Tanveer Ahmad Wani, Associate Professor, Division of Plant Pathology. Their participants and scholars, Assalamu alaikum. I'm Zohra Shabir, PhD Scholar, Division of Plant Pathology, and I welcome you all in the afternoon session of this training program. I hope all of you enjoy your lunch and you're ready for the next lecture. Now let's proceed with the next lecture, which will be delivered by Professor Shaheen Kousar, Professor and Head, SKUAST-KASHMIR, Shalimar, Faculty of Horticulture. Let me give you all a brief introduction about Professor Shaheen Kousar. Ma'am has played a key role in the empowerment of women through mushroom cultivation by adoption of low-cost mushroom technology. She has handled many funded projects as principal investigator on development of low-cost technology for commercial cultivation of white button mushrooms and transfer of technologies produced to small and marginal farmers. She has worked on evaluation of various low-cost agro-waste for cultivation of organic oyster mushrooms, as well as utilization of different aquatic weeds of Dal Lake for production of button mushroom. Ma'am has more than 16 years of experience in Department of Agriculture as Agriculture Extension Officer. She was also a demonstrator there. She has guided more than 5 PhD students, and I am one of them presently, and more than 10 MSc students. She is a life member of Mushroom Society of India, has more than 60 publications, and the list goes on. Now I wholeheartedly welcome you, ma'am, on the dais to give the presentation on the diseases and competitive modes of white button mushroom and their integrated disease management strategies. Assalamu alaikum and very good afternoon. At the first instance, I want to thank the organizers for the program, which helped especially Dr. Tanveer, who is the coordinator of the project, this training, Mushroom Production Technology, which is sponsored by Ministry of Micro, Small, Medium and Medium Enterprises, Government of India. So अभी तक मुझे लगता है आपने बहुत से लेक्चर्स सुनेंगे इसमें मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें स्पॉन प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में, and so many about this mushroom. I think many lecturers have delivered their lectures. तो आपने बहुत कुछ सुना होगा मशरूम के बारे में, लेकिन अभी आपने जो डिजीजेस वगैरह है उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा कि मशरूम में जैसे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिजीज हो जाती है, अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसमें डिजीज हो जाती है, लेकिन आपने अभी इसके बारे में आई थिंक यू हैव लिसन अबाउट दैट. जहाँ तक मशरूम का ताल्लुक है, जहाँ इसकी एडवांटेज है, हाई डिमांड है, हाई प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ हैविंग लो स्टार्टअप कॉस्ट, it is having many nutritional and medicinal benefits. Then there is you have export potential also. तो वहाँ पर जितनी भी एडवांटेजेस है मशरूम की, यहाँ से थोड़े से इसमें कुछ अगर हम अच्छे से इनको हैंडल नहीं करें, प्रॉपरली हैंडल ना करें, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक कुछ कॉन्स्टेंट्स है, जो कुछ कॉम्पिटेटर जिसमें डिजीजेस आती है, कुछ बायोटिक है, कुछ एबायोटिक है. So I have enlisted these diseases and I'll be discussing it before you. So my lecture today is on diseases and competitor modes of white button mushroom, Agaricus bisporus, their integrated management strategies. This is button mushroom at farmers level. I have worked personally in the project जो low cost technologies, हमारा एक project था वो 11 years चला. I was co-PI in the project. तो I have been to different places, far off places of Kashmir Valley. तो जहाँ हमने ये जो मशरूम की टेक्नोलॉजी है, ये स्किल हमने इम्पोर्ट की है to different जो सोसाइटी, बहुत सारे जो लो एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स में ये जो मशरूम कल्टीवेशन का स्किल है वो हमने इम्पोर्ट किया very earlier. It is just you can say it was started in 2004 and it ended in 2011. बहुत से लोग इसमें हमने ट्रेन किए हुए हैं. तो तब भी, लेकिन इसमें एक थी ये तब एक कांस्टेंट था. तो हमारे पास जो हमारा कंपोस्ट हुआ करता था, हमारे उसमें दैट वाज मोस्टली इट वाज अनपेस्चराइज्ड, और उसमें
जो इट वाज डन बाय लॉन्ग मेथड, खुद ही जो अपने जो इट टुक 1 month एट लीस्ट, ये खुद ही बनाते थे जो हम अपने पास उनका जो मटेरियल होता। लेकिन nowadays there is mostly we have pasteurized compost। तो ये आप नहीं समझना कि अभी हम मशरूम कर रहे हैं तो अगर मैं कोई डिजीज का नाम आपको, इसमें इतनी डिजीज आती है, इतने कॉम्पिटिटर मोड्स आते हैं, तो हम क्या करें। लेकिन हम ये आपको इसलिए बोल रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कभी किसी फॉर्म में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो, यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। इसलिए मैं आई बी गिविंग यू द डिटेल ऑफ कॉम्पिटिटर मोड्स, जो भी इसमें डिजीजेज वगैरह, इंसेक्ट्स, फ्लाइज है, तो मैं वो तो है, दैट्स नॉट इन माय दिस, बट still I'll be giving you, you know। So there are many these जो diseases है competitor, they are by biotic means and by abiotic। This I am showing you। तो इसमें biotic causes है, fungal है, fungi है, bacteria है, viruses है, then there are nematodes है, insects, pests also। So in abiotic causes there are adverse environmental conditions, जो भी मशरूम फॉर्म्स में कभी हम टेम्परेचर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कभी कंपोस्ट में मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, कम, इसकी वजह से जो कुछ प्रॉब्लम्स, या अंडर कंपोस्टिंग की वजह से या ओवर कंपोस्टिंग की वजह से थोड़ा जो प्रॉब्लम्स होती है, तो वी एनकाउंटर दैट समटाइम्स वी एनकाउंटर। और अब सारे जो भी फार्मर्स हैं उनके हाई वो एंड फॉर्म्स नहीं है, वी हैव स्मॉल फॉर्म्स और वी हैव सो मेनी, मतलब एक्चुअली इट इज़ मोस्टली जो हमारे फॉर प्लेसेस में है वो उसी में करते हैं, जो मशरूम उसी में करते हैं जिम निमत एबंडेंट प्लेसेस, दे आर एबंडेंट प्लेसेस है, काउ शेड है, कोई बिल्डिंग पुरानी है, दैट दे गो फॉर, वी एडवाइज देम टू गो फॉर इट, बिकॉज उसमें टेम्परेचर वगैरह मेंटेन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो देयर इज समटाइम्स देयर इज एक्सेस मॉइस्चर इन कंपोस्ट एंड केसिंग, then there is presence of toxic chemicals in the substrate, sometimes we have due to under composting कुछ अमोनिया वगैरह ज़्यादा होता, we encounter some these है ना molds etc। तो जो में अभी piles हम रेज करते हैं कहीं इस जगह पर जहाँ पर सीमेंटेड नहीं होता है, तो that causes sometimes उसमें भी पहले ही हाइजीन अच्छी नहीं होती है, then pasteurization कभी नहीं होती है, केसिंग की pasteurization अच्छी नहीं होती है ना। यहाँ पर ये होती है चीजें, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नहीं कहती वहाँ नहीं है, जहाँ पर पैस्टोराइज्ड कंपोस्ट भी वहाँ भी थोड़ा सा इन्फेक्शन कभी व्हेन वी कैरी व्हेन इट कम्स इनटू द फॉर्म, तो आपको तो ऑटोमेटिकली उसमें वो फेस करना है। देन देयर इज स्पॉन एंड प्रोडक्शन रूम, जो ये एक ही जगह होती है, यहाँ पर स्पॉन रन करते हैं, वहीं पर प्रोडक्शन, नहीं तो अलग होना चाहिए, प्रोडक्शन स्पेस अलग होनी चाहिए। देन जो अपनी वो आपको मुझे आपका यू आर गेटिंग मी, आपको समझ आ रहा है मेरा। ऐसे हमने यहाँ आपको दिखाया ना अलग अलग 2 रूम, स्पॉन रनिंग रूम अलग, प्रोडक्शन रूम अलग, वैसे मैडम कह रही है असल में होने चाहिए अलग अलग, मगर अब जिसको स्पेस कम हो वो एक ही रूम में भी कर सकते हैं। We have been to so many far off places। हमारे पास तब हमारा एक प्रोजेक्ट था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, we used to give our farmers, small farmers, we used to give them all material, even we used to give them baskets, and जो वहाँ पर वुमेन है वो खुद करती थी मशरूम, जो गाँव वगैरह में। ये देखिए जो हमारी पाइल्स है, कभी ये लॉन्ग मेथड ऑफ कंप्लीट, इट टेक्स 1 month 26 days 7 days लॉन्ग। तो जो पाइल्स है वहाँ पर जो ये औरतें हैं ना, अब ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे ना अभी, जो वहाँ पर लेडीज वो खुद कंपोस्ट बनाती थी, है ना, तो उसकी वजह से वो भी ऐसे कोई हाइजीन वो मेंटेन नहीं कर पाती थी, तो उसकी वजह से भी ये डिजीजेस आती थी। तो देन देयर आर सम फंगल कॉजेज, उसमें फंगल एक तो पैरासिटिक मोल्ड्स होते हैं, उस दूसरे होते हैं कॉम्पिटिटर मोल्ड्स। जो कॉम्पिटिटर मोल्ड्स होते हैं ना, उस वो कम्पीट करते हैं विद स्पॉन फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर दिस जो भी स्पेस उसके लिए। जो पैरासिटिक मोल्ड वो पैथोजेनिक होते हैं, जिसमें डिजीज कॉज करती हैं। तो इसलिए अगर इफ वी हैव दैट नॉलेज, सपोज टुमारो वी हैव अ फार्म, we have small, we see some, you have the knowledge of disease, once you have the knowledge, आप कहीं 100 ट्रेज में से कहीं आप लोकेट करोगे यहाँ पर कुछ डिजीज प्रॉब्लम है, we will कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो ये ट्रे हम बाहर निकालेंगे, ये बैग हम बाहर निकालेंगे, so that जो फर्दर इन्फेक्शन है that is restricted, वो बाहर। that is why you need to have the knowledge। इसमें आपको ये डिस्करेज नहीं होना है कि why this, है ना, तो इसलिए you need to have। सपोज हमारा एक स्पॉन है जो बेसिक इनपुट है मशरूम का, उसमें क्या है कि कभी जो ग्रोअर है हमारे उनको नहीं पता होती है कि अगर मशरूम की बॉटल में या मशरूम के पैकेट में कोई ग्रीन स्पॉट है, दे यूज दैट मशरूम पैकेट एंड दिस
तो उसकी वजह से जो पूरा फॉर्म है दैट गेट्स इन्फेक्टेड. अगर आपको पता है पहले ही कि इसमें ये स्पॉट है, यू विल डिस्कार्ड दैट ऑटोमेटिकली, डिस्कार्ड द बैग, you will discard the water and you won't allow it to spread on the other things, other trays and all that in the full form. So we have pathogenic molds है, इसमें wet bubble है. I have personally in my PhD program मैंने इसी disease पे पूरा इसमें काम किया microbiome पे. I have been working on the disease for my PhD program. Then there is cobweb disease, cinnamon mold, pink mold. ये पे देखिए ये है, देखो कैसे how piles of जब long method में I am showing you the photograph of 2013-14 जब हमारे अभी भी होता है, अभी जिसमें मटेरियल्स अपने इस फॉर्म की होती है वो दे गो बाय लॉन्ग मेथड, वो खुद ही करते हैं. अब कुछ फंजे इसमें ऐसे हैं जो कंपोस्ट में ही आते हैं, आधे तो केसिंग में आते हैं, आधे कंपोस्ट में आते हैं. जैसे हमारा एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारा डिंगरी मशरूम के लिहाज से और बटन मशरूम के लिहाज से और हमारा स्पान है, सब में ग्रीन मोल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मशरूम में ग्रीन मोल्ड, ठीक है ना. ये क्योंकि ये इमीडिएटली कहीं अंडर कंपोस्टिंग हो, कोई कुछ हो, थोड़ा सा इन्फेक्शन अंदर आ गया, इट स्प्रेड्स. You can see the forms over here. You can see how they are doing it. Women. It is not a new thing. They are already skilled in this. But अब एक बार मशरूम में ये है कि कभी इनको लगता है now this time we have pasteurized compost. एक facility we can now give some. अगर कोई ये मशरूम compost बनाना नहीं चाहेगा तो he can get a ready compost and he can further जो इसकी जो आपने crop management सुनी होगी वो आप कर सकते हैं. This is our mushroom center. This is how we go for spawning of trays. This is our mushroom center at Shalimar Srinagar. Here you can see मेरे लाम ना ऐसा गामस में वो ऐसी पाइल करूँ है ना, देखो because क्यों कहती है थोड़ा सा इनकी शेल्टर का काम भी दे रही है, तो ये है. This is the reason कभी ये होता है तो diseases आती है इसमें. So these are the weed fungi, trichoderma. ये जो डिजीज है, दिस डिजीज अपीयर्स एज थिक कुशन. थोड़ा सा इनको थोड़ा सा इसमें किसी वाइट, पहले वाइट ही अपीयर हो जाती है किसी भी ट्रे में अगर इन्फेक्शन हो तो इट अपीयर्स एंड देन इट टर्न्स टू ग्रीन. सो एग्जैक्टली यू कैन सी द नो इट टर्न्स आउट अ ग्रीन मोल्ड. पहले ये वाइट ही, जो भी मोल्ड आता है ना मशरूम स्पान या कंपोस्ट में, पहले यही होता है. इट इज फर्स्ट वाइट देन इट टर्न्स टू डिफरेंट कलर्स. यू कैन सी द डिजीज ग्रीन मोल्ड ओवर हियर. यू कैन सी Now one more mold is yellow mold. इसमें भी थोड़ा पहले जो माइसिलियम है, माइसिलियम होता है ना इसका लावा, माइसिलियम में जो इसका मशरूम का लावा है that is also off white, that's also off white. उसमें भी एक और ग्रोथ आती है that is white, so then it turns into yellow. You can see the disease. This is yellow mold. One more is olive green mold. It is not green mold exactly, it is olive green. Olive you must have seen. Olive green is somewhat light होता है ना वो थोड़ा सा, तो olive color different होता है. olive color it is, देखो you can see the fungus makes access to the growing room through old compost. अगर पुराना compost कहीं से आ गया, casing soil वगैरह हमने पुरानी यूज की, then it gets entry into your form. Lack of oxygen during composting, that जैसे ऑक्सीजन कम हो ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ये इस चीज़ को फेवर करता है. Again this is a competitor mold. Competitor mold means it competes with the जो आपकी न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, that is how it is known as competitor mold. ये जो कभी ये मोल्ड्स ऐसे भी फॉर्म में आते हैं, it can wipe out your all this. You know कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कश्मीर है जो क्लाइमेटिकली एनवायरनमेंट ये बहुत अच्छा है. ये छुन 45-40 का संख्या टेम्परेचर ज़्यादा बेसिकली तो ये अंडर कंट्रोल कंडीशंस ही मशरूम में करते हैं. लेकिन ये छुन त्योता का संख्या गैस ये छुन ऑलरेडी इट इज तूफान जैसे 33-35 ऐसा, तो अब यहाँ भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने लगा जिसकी वजह से ये डिजीज अब आने लगी ज़्यादा. बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी, मैं ऐसे नहीं बस आई एम जस्ट वर्किंग दिस टाइम एज अ मशरूम पैथोलॉजिस्ट, आई एम गेटिंग सो मेनी, कभी किसी से कहीं से मैडम इसको ये चीज़ है, मैडम इसको ये चीज़ है, देन वी कैन ट्रीट इट लाइक वाइज. This is your olive green mold. It isn't exactly
green, it is olive green. There is then one more mold, brown plaster mold. It is Populospora इसका causal organism है. So it appears as large, dense, roughly circular patches of white mold on the surface of casing. These patches later turn brown. That is how it is known as. That's why it's known as brown plaster. ये later on पहले white आता है, then it turns. फिर exactly आप identify कर सकते ये brown mold है, brown plaster mold. This is brown plaster mold. This is on the surface of compost. This is white. It remains white. ये पहले white ही आता है and white ही रहता है. That's why it is known as. The disease appears as white patches of mycelium and spores on the casing surface, and it is also in the compost. Many other weed molds initially produce white mycelium, but they change color as they age. Otherwise ये white ही रहता है. This remains white. बाकी है ना, कोई green हो जाता है, कोई olive green हो जाता है. इसलिए मैंने आपको बोला कि अभी डर नहीं जाना, आप बोलेंगे इतनी डिजीज नहीं, ऐसा नहीं है, कभी आती है. So you must be able to identify that. This is pink mold again. इसको ट्राइकोथीशियम बोलते हैं, ट्राइकोथीशियम रोजियम. The fungus develops as a white colony on the compost or even wooden. आजकल हम wooden containers जो है ना वो avoid, because wood is now a costly affair. ये wood में ज़्यादा आता था, लेकिन अब ज़्यादा प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग्स में यूजुअली यूज करते हैं. Then this is known as lipstick mold. One mold mushroom is called as lipstick mold. The mold appears as white mycelium cottony growth on compost or casing in the initial stage. Later it turns to pink. This is like, you can just identify this is a mold, pink mold. Then there are ink caps. ये भी एक mold है, ink caps है. तो ये क्या होता है, ज़्यादा अगर when we prepare our compost by long method, कभी under composted रहता है या और कभी, तो उसमें ज़्यादा हमको ये this actually when we go for composting, ये एक sign होता है हमारी जो composting it is on, it is going on, because once there is ammonia during fermentation process, ammonia is released, उसमें ये ज़्यादा आती है ये ink caps. तो अगर कभी compost में compost जब हम ये अंदर ले जाते हैं ना, अंदर रूम में, अब हमारे इंक्यूबेशन रूम में, तो वहाँ पर भी ये कभी निकल आते हैं. दैट मीन्स आपका जो ये है इसमें इट हैज एक पूरा नहीं पका हुआ है, मतलब आपको समझ आएगा. देन देयर इज पिज़ाइज़ा. ये छोटे छोटे आते हैं, डार्क ब्राउन जिलेटिनस, थोड़े से इनके कभी कुछ तो कभी आते हैं इसमें. तो व्हेन यू सी देम दैट मीन्स इसमें भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसमें ये आ रहे हैं. सिनेमन, इसको सिनेमन मोल्ड बोलते हैं. दालचीन मोल्ड छे थोड़ा, दालचीन छे आसान थोड़ा, बट इट हैज स्मॉल कैप्स लाइक स्ट्रक्चर. देन देयर इज वन मोर मोल्ड ब्लैक. इसका मोल्ड ज़्यादा नहीं आता है, बट ब्लैक थोड़ा ब्लैक, इसका थोड़ा ब्लैक मोल्ड होता है. देन देयर इज वन मोर मोल्ड दैट इज ब्राउन मोल्ड. सो इसके बाद ये हो गए मोल्ड्स, ये हो गए कम्पिटिटिव मोल्ड. नाउ वी हैव पैरासिटिक मोल्ड्स जो पैथोजेनिक होते हैं. दोज आर, उसमें हमारे कुछ माइक्रोपैरासाइट्स भी होते हैं. माइक्रोपैरासाइट मीन्स कि ये ज़्यादा कंपोस्ट और केसिंग में आते हैं, लेकिन ये जो मोल्ड है, ये पैरासिटिक मोल्ड, ये कॉमन फ्रूटिंग बॉडीज ऑल्सो. जो हमारा फ्रूट निकलता है ये पैरासिटिक में वो है. एक ड्राई बबल है, दूसरा वेट बबल है, तीसरा कॉबवेब डिजीज है. तीन इंपॉर्टेंट मोल्ड्स है मशरूम में. दे आर पैरासिटिक मोल्ड एंड दे आर पैथोजेनिक इन नेचर. देखो इसमें एक मेन इसमें ये है जो वेट बबल में, इसमें जो मशरूम फ्रूट बॉडीज है वो डिस्टॉर्ट ही हो जाती है. दे आर नॉट जस्ट लाइक मशरूम, दे आर समथिंग, दे आर सम ग्राउंड मॉसेस, अजीब से ये थोड़ा रफ मॉसेस हो जाते हैं. दैट मीन्स इनको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में सेक्युलरोडर्माइड मॉसेस. सेक्युलर क्योंकि ये मशरूम्स एग्जैक्टली नहीं रहती इसमें, ये पैथोजन है इसमें. दिस पैथोजन दैट इज नोन एज माइकोगोन पेर्निसियोसा. तो कभी इसमें फिर जब ये ज़्यादा आता है ना, जिसमें थोड़ा इसमें एम्बर कलर के ड्रॉप्स भी हो जाते हैं इसमें, और जो इसमें थोड़ा फाउल स्मेल भी, इसमें थोड़ा फाउल स्मेल भी आती है. और एग्जैक्टली यू कैन लोकेट दिस व्हेन यू हैव दिस ट्रे. दिस इज माय रिसर्च, दिस इज फोटोग्राफ फ्रॉम माय रिसर्च. तो उसमें हमने इनोकुलेट यहीं से किया था. तो इनोकुलेट करके आप देखो फ्रूट बॉडी में क्या शेप हो गई है. सो इट हैज ऑल डिस्टॉर्टेड शेप.
So it's very dangerous. If this disease, competitor mode में हम जैसे यूं ही हम मैनेज कर लेते, we can easily maintain hygiene, हम करते हैं maintain sanitation maintain करते हैं, तो वो control. लेकिन जो पैथोजेनिक है, अगर ये फॉर्म में आ गई है, they can sometimes wipe out the crop. So one more disease is dry bubble. The symptom development varies with age of the mushroom. आप देखें किस स्टेज पे ये मशरूम में आई. अगर लेटर स्टेज में है तो ज्यादा फिर नुकसान. अगर पहले ये आ गई तो it does not allow crop to grow. You know, this is when affected at later stage, they are often imperfectly formed with partially differentiated caps. देखो आप you don't know the mushroom की shape distort होगी, है ना. They have shaggy stripes. Shaggy means उसका जो stripe वो भी सही नहीं होता है. Then one more disease, that is cobweb. This time, you know, my one student is working on this disease also. कश्मीर में ये भी एक प्रॉब्लम है मशरूम में थोड़ा कभी भी ये आई एम नॉट टॉकिंग कि हर जगह आती है, मगर जब आती है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. ये हर जगह जहाँ पर इन्फेक्शन इसका एंटर हो गया तो देन यू हैव टू मैनेज दिस, यू नो. This is one more. This is false stuff. ये भी इसमें भी मशरूम्स की शेप इट इज जो पैची अपीयरेंस होती है इसमें, तो एग्जैक्टली जो मशरूम है इट डज नॉट अलाउ मशरूम्स टू ग्रो. One more is they're not bacterial. Bacterial important इसमें bacterial blotch. इसको Pseudomonas thalassii बोलते हैं. जो disease mushroom है they show yellowish brown patches on cap and style. In severe cases whole mushroom turns brown. कभी क्या होता है जब हम वाटरिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, हमारे मशरूम फार्म में करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें हमको ये जब स्प्रेइंग की या तो हम हेवी स्प्रे करते हैं, हो गया ठीक. देन वी वोंट गिव वेंटिलेशन नहीं देते हैं, तो जो वाटर है ना वाटर ड्रॉप वो मशरूम पे ठहर जाता है, ठीक है ना, जो मशरूम होता है ना ऑलरेडी. तो उसमें हमारी एक एडवाइस है कि जो भी हम जब हमारी मशरूम तैयार हो, फर्स्ट यू शुड पिक देम अप, देन यू हैव द पिन्स एंड यू हैव द सेकंड फ्लश, यू हैव थोड़ा और मशरूम इसमें ट्रे पे. तो आपको जब स्प्रे करो इट शुड बी मिस्ट स्प्रे एंड लेटर ऑन जब मिस्ट स्प्रे दिए फिर हमको थोड़ा वेंटिलेशन देनी है फॉर्म में, सो दैट जो पानी होता है ना इसमें ऊपर तो वो ड्राई हो जाए. ये डिजीज ज्यादा बैक्टीरियल ब्लॉच इसी में आता है. मशरूम पे आब रोजा देन इट लेटर ऑन इसमें थोड़ा डिके हो जाता है. देन इसमें वायरल डिजीज पे है, इसमें ये थोड़ा सा जो हमारा पैची अपीयरेंस ऑफ दिस है ना, कहीं पर हमको माइसिलियम होता है ट्रे में, तो ये वायरल है, ज्यादा नहीं होता है यहाँ पर, बट समटाइम्स वी एक्सपीरियंस इन सम फॉर्म्स. नाउ देयर आर एबनॉर्मलिटीज. पहले में हम कॉम्पिटेटिव मोल्ड्स की बात कर रहे थे, फिर हम कर रहे थे डिजीजेस की बात, पैथोजेनिक मोल्ड्स की. देन व्हेन जो नेक्स्ट जो एबियोटिक स्ट्रेसेस है, एबियोटिक में हमारे जो एबनॉर्मलिटीज होती है, एबियोटिक जो डिसऑर्डर्स है, उसमें क्या होता है इनके इसको बोलते हैं रोज कॉम. मशरूम इज नॉट, देखो मशरूम की शेप क्या हुई है, यू नो, इन दिस डिफॉर्मिटी पाइलस इज डिस्टॉर्टेड एंड लैमेली आर फाउंड इन द अपर सर्फेस. जो लैमेला नीचे होता है ना मशरूम को वो ऊपर आ जाता है, इट इज लाइक दिस. सो इसमें भी इसको इस शेप को हम रोज, अगर हम ये देखें तो इसका मतलब है कुछ जो क्लाइमेट है मशरूम के अंदर जो इसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम है या लेस और मोर कुछ ऐसा मॉइस्चर है वेंटिलेशन की, तो उसमें हम ये. देन देयर इज लॉन्ग स्टार्ट मशरूम्स ड्यू टू लैक ऑफ एरिएशन. कभी फॉर्म में ऐसे क्रैक्ड मशरूम्स आते हैं, ऐसे स्टेम्स थोड़ा सॉलिड हो जाते हैं. स्टार्च बिगिंस, ये एक्सट्रीम केसेस में जिनको बिल्कुल पता ना हो कि हमको कैसे करना है. समटाइम्स दे गेट दिस सिम्पटम, यू नो, जिनको बिल्कुल स्किल नहीं ना हो कि हमको कब पानी देना है, हमको क्या करना है, ऐसे ही रखते हैं कंपोस्ट लगा के स्पान लगा के, तो दे डोंट मैनेज इट. तो उसमें भी ये डिजीज वगैरह ये डिफॉर्मिटीज, दिस एक्चुअली डिफॉर्मिटी, ये डिफॉर्मिटीज आती हैं. देन देयर इज स्ट्रोमा फॉर्मेशन. ये हमारे फॉर्मर्स में बहुत ये है, और ज़्यादा जो भी फॉर्मर्स के है ना इसी के फोन आते हैं स्ट्रोमा, बिकॉज दे नो जब जो हमारा ये मशरूम माइसिलियम पूरा कवर करता है ना कंपोस्ट को, उसके बाद हम केसिंग करते हैं. केसिंग के बाद आफ्टर 1 वीक यू शुड गेट मशरूम माइसिलियम इन द केसिंग. हम अब केसिंग आती है, लेकिन इसमें यूजुअली हमारी जो फार्मर्स की प्रैक्टिस क्या है,
वो इसमें ये नहीं देती, एरिएशन प्रॉपर नहीं होती है. जब एरिएशन प्रॉपर नहीं है, हमारा जो लास्ट इसमें ये जब फ्रूट बॉडी फॉर्मेशन होती है, देयर शुड बी एनफ एरिएशन, एनफ वेंटिलेशन टू द जो इंक्यूबेशन रूम है, वो नहीं. तो इसकी वजह से क्या हो, जो ये मशरूम ये थोड़ा सा ऊपर से टफ जैसा बन जाता है बिल्कुल. तो मशरूम्स पिन हेड नहीं निकलते हैं इससे टफ. तो ये ज़्यादा फॉर्म में ये प्रॉब्लम है. तो फिर हम उनको सिंपली बोलते हैं आप थोड़ा एरिएशन इम्प्रूव करो, तो ऊपर से थोड़ा स्क्रैचिंग करो इसमें, तो ये ठीक हो जाएगी. इट विल, तो ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एरिएशन द हो जाता है ये फॉर्म में. सो दिस इज ऑल अबाउट जो इम्पोर्टेंट है मैंने बोल दिया. नाउ देयर आर इंटीग्रेटेड, जो आप सारे जो डिजीजेस, इसमें एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है which you everybody should know so that you can follow that after you have. I think उसमें थोड़ा सा अगर आपको, क्योंकि इसमें बेस ये है पहले आइडिया में कि you have to acquire the disease information. डिजीज क्या है, किस स्टेज पे क्रॉप है. पहले भी हम जब भी कोई फॉर्म, आपको क्या क्या स्टेज है, कंपोस्टिंग कर रहे हो, स्पानिंग कर रहे हो, स्पान रन हो रहा है, आप किस स्टेज पे हो. तो यू हैव टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन किस स्टेज पे आपका आईडीएम टू इम्प्लीमेंट योर आईडीएम प्रोग्राम. आईडीएम मीन्स इंटीग्रेटेड, क्योंकि हमारा जो फोकस है मशरूम का, फोकस ये है वी शुड नॉट अप्लाई मच केमिकल्स, क्योंकि ये एक ऐसा क्रॉप है जो हमको इमीडिएटली इट्स अ पेरिशेबल एंड इट इज इमीडिएटली यूज्ड, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है. सो वी शुड नॉट अप्लाई मच केमिकल्स. सो वी हैव टू फॉलो ऑल प्रैक्टिस वी कैन अवॉइड द डिजीज इन द फॉर्म. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्वायर द इंफॉर्मेशन किस स्टेज पर क्रॉप है, मतलब ये कंपोस्टिंग चल रही है, केसिंग है, स्पान रन हो रहा है, नहीं इट्स अ स्टेज यू मस्ट नो. देन मॉनिटरिंग द फॉर्म एनवायरनमेंट मीन्स जो अंदर आपकी इंक्यूबेशन के मेन इसमें ना, उसमें फोकस है कि हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है, हम हाउ मेनी टाइम्स वी गिव दिस स्प्रे टू द दिस, है ना, हमारा जो अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, ज़्यादा हॉट तो नहीं है. सो वी हैव टू मॉनिटर दैट बिफोर गिविंग एनी दिस, है ना. देन प्रॉपर कंपोस्टिंग फॉर्मूला प्रोसीजर, है ना, जो हमने कंपोस्ट बनाया उसमें फॉर्मुलेशन जो थी, क्योंकि एक फॉर्मुलेशन होती है ना इसमें, यू मस्ट हैव लर्न दैट. तो एक फॉर्मुलेशन एग्जैक्ट ये है, कोई ज़्यादा काम तो नहीं है कुछ, तो इसकी वजह से वो एक्वायर करना है कि वो फॉर्मूला ठीक है. देन टेक्निक्स टू मैनिपुलेट डिजीज पॉपुलेशन, है ना, हाउ अगर डिजीज है तो हाउ विल हैंडल इट, है ना. देन इसमें एक मेन है डिजीज में पैस्चराइजेशन ऑफ कंपोस्ट, हुई है कि नहीं हुई है. अगर पैस्चराइजेशन हुई है तो उसमें भी ये है कि चांसेस ऑफ डिजीज आर लेस. अब होता है रेयर केसेस में वो भी है, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पैस्चराइज होता है उसमें जो भी अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो वो फैल जाता है ना, बस क्योंकि इट्स अ सिलेक्टिव मीडियम. देन सो ये हुई है, इज इट अनपैस्चराइज्ड, इज कंपोस्ट बाय लॉन्ग मेथड, इज इट बाय शॉर्ट मेथड, वी हैव टू एक्वायर दैट इंफॉर्मेशन. देन स्टरलाइजेशन, ये प्रॉपरली स्टरलाइजेशन ऑफ जो केसिंग सॉइल है वो हुई है कि नहीं हुई है ना. दिस इज ऑल आई हैव डिस्कस्ड. ये देखो, आई थिंक आई नीड हैव दिस स्पेक्स फॉर दिस. सो ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ये देखो, ये इसमें जो जितने भी यहाँ पर फंजे हैं आइसोलेटेड फ्रॉम दिस कंपोस्ट, ये है डिफरेंट जो सबस्ट्रेट माइक्रोफ्लोरा जितने भी होते हैं ना इसमें कंपोस्ट में. तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये एक साइंटिफिक और ये है पेपर है. तो इसमें हम ये कहते हैं कि जो पैस्चराइज्ड में है उसमें डिजीज देखो ये पॉपुलेशन बहुत कम है, यू नो, इसमें भी आई है प्री ना, तो लेकिन इसमें जो पैस्चराइज्ड है इसमें बहुत कम है. You can see this is, I think this is the village from Kazikot area. तो ये बहुत पुराना फोटोग्राफ, जब हम इनको लेडीज को सिखाते थे ना ये मशरूम का कंपोस्ट, अब लॉन्ग मेथड ज़्यादा मोस्टली वी यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग मेथड, क्योंकि लॉन्ग मेथड में ये था कि जो भी मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी था वो उनके साथ ही था. वी जस्ट उनको हम इम्पोर्ट सिकल करते थे कैसे हम कंपोस्ट, हाउ विल मेक इट सिलेक्टिव फॉर द मशरूम्स. दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ दोज टाइम. दिस इज Surasiyar, Chadura, it's Chadura. Surasiyar falls in Chadura. I have kept these dino photographs here. Techniques to manipulate pathogen population, है ना. Then this is how compost. It is in brain shot. This women. Then this is population dynamics of unpasteurized and pasteurized. देखो, you can see the population dynamics of these molds, fungi in unpasteurized than in pasteurized.
pasteurized is very less. It is very less in pasteurized. So the need is better to have pasteurized compost than to have unpasteurized one. So then this is comparative yield performance of various strains of button mushroom on unpasteurized. You can see on unpasteurized only it is 14 kgs per quintal of this compost. But in case of pasteurized it is even you touch 20, 19, 20, different strains. These are different strains. We have evaluated them and on different unpasteurized and in pasteurized compost. So we are getting better yield. We are getting yield double in pasteurized compost. This is colorization of casing material. Whether we go for solar heat से भी जो है ना casing वो कर सकते हैं. Then there is chemical fumigation. Then there is pasteurization which minimizes the population dynamics of weed, molds and pathogen. ये भी हम आजकल हम pasteurized ये भी जो हम ये pasteurized ये लाते हैं ना compost उसके साथ casing भी pasteurized ही मिलती है, ठीक है? So there are less chances of disease in that. You can see influence of solar heat, chemical treatment and pasteurization or soil microflora. Here it is solar treatment, heat treatment कैसे करते हैं, then formalin treatment and pasteurization. Or again you are getting very less population in pasteurized, है ना? अगर हम solar heat, although it काम करता है untreated, that's the untreated one, है ना? तो लेकिन population ज़्यादा कम किसमें है? It is in pasteurized this. This is all work we have done. जो हमारे projects हैं, this is that work we have done. Then there is biological control. मैंने यही बोला कि हम चाहते हैं कि मशरूम में ये ज़्यादा ना. तो again we have worked on some जैसे bacterial and इसमें फंगल में थोड़ा कम ही क्योंकि ये मशरूम खुद भी फंगस है. फंगल जो बायोस में ज़्यादा स्कोप नहीं है, but we have bacterial that is ये Pseudomonas है, Bacillus है, there is Azote है. They work against these fungal diseases, you know. उस पे मैंने भी काम किया जो हमारा pathogenic fungal wet bubble में हमने उस पे तो it has lowered जो yield भी increase किया है and जो population भी कम हो गई. It has worked in fact. वो मैंने इसमें नहीं किया है, डाला है, otherwise I would have. Influence of biofertilizer application spawning time on the occurrence of competitor molds on mushroom compost. ये देख सकते हैं. Incidence of molds है ना? This is है ना? This is and how many percent? This is percent control. We have achieved by using these Bacillus, Azotobacter, हैं? So all. So we have increased our this. It is increased our incidence over control. We have increased it by this decrease in this mold population, decrease in the mold population, and increase in the yield. Then again we have influence of application at spawning time on the yield of button mushroom. So we have increased 20% yield by applying azospirillum, azotobacter. ये सारे हमारे जो you must be knowing. तो इनको नहीं इसकी ज़्यादा knowledge नहीं होगी, but आपको आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि जो हम करते हैं ना जैसे हम इसमें एक commercial formulations भी इसमें आती है तो we can control it by non-chemical means because we want to keep it pesticide free, insecticide free. Again, this is in terms of biofertilizer application spawning time on various तो ये research है तो चलो we'll skip it here. Again, we have used many botanicals. इसमें हमने neem use किया है. We have used artemisia. We have used Attica. That means leather grass. Botanicals, you understand? Botanicals are what we get from the plant extracts. Plant extracts, है ना? जो extract हम plant से निकालते हैं, for example, उनमें antifungal activities होती है, antifungal activities होती है, तो we use them again. So we again try to avoid the chemicals. क्योंकि इसमें क्या है कि अगर mushroom हमको आया या पहले से ही अगर थोड़ा क्योंकि it has long life, small, ना short lifespan, short cycle. उसकी वजह से अगर हम इसमें वही इसका जो वही रहेगा ना इसका असर तो वही बहुत कम we try to avoid the chemicals. असल में कि अगर chemical use करान mushroom industry में अक्सर करान formalin use for this sanitization and again we use carbendazim और वो भी बहुत कम concentration because we cannot use that. It's against the antifungal. We cannot use that because
मशरूम इज अ फंगस, अगर ये ज़्यादा हो गया तो ख़त्म, मशरूम माइसिलियम भी ख़त्म हो जाएगा. So in very less quantities we use it. Presently some botanical extracts and culture filters of the biocontrol are being tried both against mushroom as well as pathogenic fungi. ये निमेटोड्स में होती है. I have not touched that. निमेटोड्स है जैसे एफ्रनकाइट्स है, कुछ निमेटोड्स भी आती है, कुछ ऐसे इसमें मोल्ड्स है जिसके साथ ही एक हमारा ब्राउन मोल्ड है. अगर ब्राउन मोल्ड इसमें आ गए दैट मीन निमेटोड इज आल्सो प्रेजेंट. माइट इज आल्सो प्रेजेंट. देन देयर इज फ्लाइज होती है. फ्लाइज भी हम ट्राई करते हैं. मशरूम हमारी फ्लाइज आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फ्लाइज आ गई, तो वी ट्राई टू डू इट मैकेनिकली बाय यूजिंग दिस फ्लाई ट्रैप्स एंड ऑल दैट. नो दिस इज पहले ही हमने लिखा है अवॉइड केमिकल्स. Fungicidal management, however, under extreme outbreaks, certain chemicals are used. That is carbendazim in very less concentration, chlorothalonil, then prochlorous manganese, and dithiocarbonate mix we can use. So these are the broad consideration of mushroom for community. For IDM program, entire mushroom farm community has to be taken. इसका मतलब ये है कि हम एक फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते. If we have many farms in vicinity, we have to control disease in all the farms. So that it should be a पूरा system. नहीं तो हम एक फॉर्म में कंट्रोल करेंगे तो दूसरे में. This is what it means. And isolated farm has the best chance of quickly controlling the disease problem, but mushroom farming is not always an isolated. It's not an isolated disease. Whenever you see this farm, it एक ग्रुप में होती है. ताकि इसमें मशरूम विलेज होते हैं, है ना. एक कम्युनिटी होती है वी टू मशरूम. So once some problem comes, we have to again. अगर इस वक्त आप देखोगे पोल्ट्री फार्म्स में ये प्रॉब्लम, अगर पोल्ट्री फार्म में ही होता है, अगर एक फार्म में डिजीज आती है, से इकोलाई कुछ डिजीज आती है वहाँ पर, तो ये सब फॉर्म में फैल जाती है. सो इट शुड बी एन कम्युनिटी बेस्ड. Then you have certain precautionary measures which you have to necessarily do them to avoid the diseases and competitor modes. Compost पहले first instance it should be prepared in a cemented floor. If not on, it should not be on कच्चा floor. अगर इस better क्योंकि उसमें हम formalin यूज करते हैं, थोड़ा इसको वो नहीं होना चाहिए. बस हाइजीन हमको एक्चुअली सारे जो अगर बेस से हमको हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल रखना है. अगर जितना हम खुद इसका ख्याल रखेंगे, से हम यहाँ पर ऐसे उठते हैं तो खुद हाथ लगा, या जितना हम ग्लव्स यूज करेंगे ड्यूरिंग हर कोई भी ऑपरेशन हो मशरूम का, दैट अवॉइड कंटैक्ट डिजीज, क्योंकि इट गोज फ्रॉम ट्रे टू ट्रे. एक लोगों के साथ भी, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. जो हमारे मशरूम फार्म में कुछ भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वी हैव टू डिसइंफेक्ट देम विद द फॉर्मलिन. जब वी हैव टू एंटर इन द फॉर्म, एटलीस्ट जो बाहर वाला जो ये है ना वो मैट, इट शुड बी डिसइंफॉर्मली सो दैट अंदर जो जूता है वो बाहर, मतलब ऐसे. These जो small things we have to keep in mind so that we can avoid these, because it's simply mold, some कहीं से भी हो. So it is because mushroom एक ऐसी चीज़ है, it is very management sensitive crop. सब कुछ ठीक है, but management should be good, you know. जितनी अच्छी हो, you can avoid the diseases, you know. ये सारा में वही है. Shoes should always be soaked in, है ना. Then disinfectant tools, before you have to disinfect, harvest, then है ना. इसमें एक अच्छी प्रिकॉशन है, जैसे मशरूम हार्वेस्ट करते हैं ना, हार्वेस्ट यस तक स्पेस ना मशरूम गसा खली तक सो दोब, है ना. वी हैव थोन फॉर्म्स में पहले ही हमको रखना है स्टरलाइज्ड केसिंग सॉइल, सो दैट वी कैन फिल इट बैक, बिकॉज जहाँ पर वो खड़ जैसा बन जाता है ना मशरूम ये करने से, तो उसकी वो भरना है, दैट बिकम्स द सोर्स. Again you have some diseases mushroom, you have some rotten mushroom, you have to collect and you have to take it out from there. So you have to take the small things to control the disease. Mushroom buds, उनको buds बोलते हैं. Timshan था मैंने स्पेक्ट के निमा mushroom दिल रोज bud एक उसमें that invites diseases, वो avoid करना. Next is एक जैसे मैंने लिखा है open and disease mushroom, they should be discarded या put in the formalin solution, है. Then proper preventive measures should always be taken against the spread of pests, disease, competitor and further dissemination. जो बाकी जो bags में वो नहीं होना चाहिए. I think you are getting me. I don't. Yes, madam. They are getting सब पूरा समझ आ रहा है ना. अच्छी तरह से आप समझ रहे हो ना. आप interact करो. अब नहीं, they can interact later on. I think I'll just. After the termination of the crop, tray should be thoroughly disinfected.
If I terminal growth, you have not keep it. अगर इस इफेक्ट था ना कि imbalance तो नहीं हिच बीमारी से then that वो उसी time disinfect करनी है with 2% family you have to use it. Then the room मतलब जो room है इसका that should be also cooked out. इसमें भी वो करना so then next season you can next crop you can use it. So that's the precaution. This is our mushroom center in Shalimar. Thanks a lot. Thank you very much.